Good evening, my Good class evening. fellow. I'm going to talk about HLU, that is Hindustan Unilever Success Case Study, Kankhajura Radio Station. The story of Unilever rural marketing and outreach strength. How they reach out to millions of people through a very simple yet unique idea. Saloni, you can continue now. Okay, ma'am. So first, let's understand the problem faced by brands in rural India. The very main point in advertising here is media. Media is everything. Which channel do you want to choose? How many times to give out ads on it? What would be the message of that ad? And how it will attract the people? How efficiently and effectively the particular ad will convey the message? All these important decisions have to be taken by any advertising team. But what to do in a country like India, where 130 million people daily go without electricity at least? Okay, Saloni. Okay, ma'am. So all these important decisions have to be taken by any advertising team. But what to do in a country like India, where 130 million people daily go without electricity at least one third of a day on an average? That clearly means there is disconnection from the world is inevitable. मीन्स आप कौन सी एड कब दिखा रहे हैं और कंज्यूमर्स उसको कब देख रहे हैं आपको कुछ नहीं पता होता है, बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट इज नॉट फॉर 24 hours a day in rural India. In this case, how to make consumers aware about your brands? This is a big challenge and question for any company. The solution that Unilever came up with was very simple and unique, and that was Unilever Kankhajura radio station. So Unilever noticed that when people do not have electricity, they have only one connecting point, and that was their mobile phone. Like mobile phone is the only thing people carry 24 into 7 in their hand. And in Bihar and Jharkhand alone, over 70% of people had mobile phones. The solution to their problem was they introduced radio in a mobile phone. Now, how Very does good. it Yes, how does it work? It was basically a toll-free number, which was 1-800-300123. User make a missed call, just called on this number, and after a few seconds, the user will get a missed call back from free from Unilever. This call was called Boss of Free Entertainment, and Unilever offered a free, on-demand, and always-on entertainment dose of music, jokes, and much more, like news also. But of course, Unilever had a mission behind it and had an aim behind it. So they started placing their Unilever ads between all their entertainment stuffs, because the call was 18 minutes long. In entertainment, Unilever played its own ad for different products and things, making it a win-win for all. After Very every good. after every song, jokes, and even a bit of news, there was a Unilever ad that was played so that the company can reach out to millions of people and also have a retention state in their mind of all the Unilever brands. Not only this, this time the Unilever was also the jokes or that tune was very attractive and catchy in its own. Like now only the tune that was Unilever played, that was very attractive and catchy to the ears. Now talking about objectives of the initiative, two very simple objectives, that was they have to reach to the mass through their drive, means million of the people targeting Indian customers were targeted through this drive. And secondly, to ensure repeated listenership. Now that entertainment stuff has to be updated every time and every day, because they have to add new songs, news, and Bollywood drama, so that consumers can go attracted to it. Very good. Last point of this Unilever case study, did they really get the achievement what they were expecting result from this case study or Unilever rural marketing initiative? So the answer to this question is yes. First 6 months of the initiative attracted 18 million callers. The cost is very less,
2% off for impression, which was way more cheaper for Unilever from any other media channels. By 2015, it has grown to 35 million subscribers, which was a huge number, and it was almost adding 25,000 subscribers a day in 2015. As it was started in 2013, so within 5 years, that is by 2018. Just wait for a second. Yes. So within 5 years, that was by 2018, it had created 70 million ad impression within a rural sector in India. Lastly, I would conclude that the Kan Khajura radio station was one of the greatest successful initiative taken by that Unilever took, and created a new media for 130 million people through their mobile phones. Thank you. Very good. Very good. Very good. Anyone have any question from this point? किसी को भी कोई doubt या कोई question है? Anyone have any question related with the Unilever Kan Khajura, this radio station? Anyone have any question from this topic? So what you all understand from this presentation? क्या समझ में आया कि this why the Unilever started connecting the people with the mobile phone? The major reason is the lack of electricity in the rural areas, right? The second and very important thing I just want to ask, that is it in Saloni, I'm asking you this question from you, that Yes, this type of initiative which is taken by the Unilever, did it give benefit for increase in the product demand as well? Yes, ma'am, of course. They took How? massive. They captured Indian rural market at very large level. And by the time daily growing 25,000 subscribers a day, it is a massive success for any outsider company. Like Unilever is a foreign brand. We collaborated Unilever. with. बिल्कुल. Yes, ma'am. So I am just asking about what kind of products were demanded more after using this initiative, Kan Khajura, Unilever Kan Khajura radio station. Ma'am, What kind of products? FMCG goods, mainly FMCG goods. FMCG goods. Yes, Okay. ma'am. So it increased or it impacted on the rural people in two ways. First of all, they are getting the entertainment, as well as they are able to understand about, or they are aware about what kind of products Unilever are offering in the rural market, right? Yes, ma'am. What can be the types of food product like that is FMCG? True? Yes, ma'am. Okay. So Unilever is a company which is selling the FMCG good only. चलिए ठीक है. Very good, Saloni. Yes, next student. Roll number. Okay, Monica. She is going to give the presentation on the topic of rural entrepreneur. ठीक है, rural entrepreneurs के बारे में आप presentation देंगी मोनिका. ठीक है बेटा? Okay. Monica? Yes, ma'am. Okay. Okay. Let's start with the topic. So what we are going to discuss today, that is about the self-help group. Before starting this point, this topic, I just want to know that how many of you knows about this word self-help group? कितने लोगों ने self-help group के बारे में सुना है? कितने लोगों को पता है? How many of you? Yes, Saloni. Tell. जो स्वयंसेवी संस्थान होते हैं. एक मिनट मोनिका. Yes, Saloni. Tell me. यस मैम, ये मेनली वुमेन्स का ग्रुप होता है जो पैसे करके एंड देन जिनको जरूरतमंदों को हेल्प करते हैं. Basically, they are contributing the money and then after that they are giving the credit facilities. Very good. Yes, Monica. Yes, Monica. यस मैम. हाँ बोलिए, क्या बता रही थी आप? बोलो. लड़की जो है ना एकदम. वुमेन्स का ग्रुप होता है, ये मेनली गवर्नमेंट इसलिए ऑर्गेनाइज किया ताकि जो भी वुमेन्स है जो कम एजुकेटेड है वो सेल्फ रिलायंस हो सके. हाँ, there is one more benefit that for self reliance and for the independency this type of initiative or this type of group was made. So let me start with this self help group concept. तो जो self help group है basically it is a financial intermediary committee. तो जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कमिटी, ये क्यों इसको लाया गया, इसका बहुत बड़ा रीजन था लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज. ठीक है,
और जब कुछ आरआरबीज वगैरह जब स्टैब्लिश नहीं थे उस समय, तब भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो था, इसका कॉन्सेप्ट था। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इसमें कुछ आपके 10 से 25 लेडीज जो हैं, वुमेन जो हैं, वो मिलकर उन्होंने ये ग्रुप शुरू किया था। और उसमें लगभग ऐसे ही ग्रुप में पीपल होते हैं 10 to 25, 30 पीपल, एंड दे व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कंट्रीब्यूटिंग द मनी, एक जगह पे पैसे को इकट्ठा करते हैं, एंड दे आर गिविंग दैट मनी टू द पर्सन हु इज अ वेरी नीडी पर्सन, या फिर उस ग्रुप में ही किसी को नीड है तो उसी पर्सन को आप एज अ लोन दे देते हो, और बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर वो लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप लाने का रीजन ये था कि जब कुछ कोऑपरेटिव्स और कुछ बैंक जब आ भी गई, तब भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर इतना लंबा था कि कुछ अनएजुकेटेड लोग, इलिटरेट लोग और लैक ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जिसके पास कोलेटरल या सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें लोन लेने में काफी दिक्कत होती थी। तो जो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जो ये एक टाइप का ग्रुप और कमिटी है, ये ऑथराइज हो चुका है अब इंडिया में, और इट इज अलाउड टू मेक दैट सच काइंड ऑफ ग्रुप। और इसमें लगभग याद रखिएगा कि जो इसमें पीपल होते हैं, दैट इज नॉट मोर देन 10 to 25, इतने से ज्यादा होते नहीं है। एज ग्रुप इज अराउंड 18 to 40, और ये इसमें ज्यादातर ये कहाँ पर हैं इस टाइप के ग्रुप? सो बेसिकली बोला जाए तो आपके पूरे कंट्री के कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो ये साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में ही ये सबसे ज्यादा ग्रुप है। साउथ एशिया यानी इंडिया हमारा साउथ एशिया में आता है, पता होगा तुम लोगों को, है ना? सो यहाँ पर सबसे ज्यादा बांग्लादेश में है आपके कुछ, ये सब जगह पे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि इसका जो ओरिजिन है, यानी कि है क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसको लिखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल, ये फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल एसोसिएशन है पीपल का। लिखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल who come together to find ways, who come together to find ways to improve the living condition, to improve the living condition, to improve the living condition, ठीक है? दे आर जनरली सेल्फ गवर्न्ड, ये सबसे, इसमें एक चीज याद रखिए, सेल्फ गवर्न्ड है, यानी कि जितने उसमें मेंबर्स होंगे उन्हीं के थ्रू ये कंट्रोल भी किया जाएगा, ठीक है? सेल्फ गवर्न्ड है, एंड आपका इसमें जो कंट्रोलिंग होगा दैट विल बी फ्रॉम द ग्रुप मेंबर्स, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनके द्वारा इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर याद रखिएगा कि ज्यादातर वो लोग जुड़ते हैं इस टाइप के ग्रुप में जिनका बैकग्राउंड और इकोनॉमिक स्टेटस लगभग सेम होता है, ठीक है? सो पीपल ऑफ द सिमिलर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, people of similar economic and social status, people of similar economic and social status, social status या background associate generally with help of any NGO, ठीक है? तो पीपल जो सिमिलर इकोनॉमिक या सोशल बैकग्राउंड के होते हैं, वो जो कि एसोसिएटेड हैं किसी भी हेल्प ग्रुप के, एनजीओ के, वो गवर्नमेंट एजेंसीज के, वो बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, दे आर बेसिकली इंक्लूडिंग इन दैट या इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है? अब इसका इमर्जेंस कैसे हुआ, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ इट वाज इमर्ज, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। इसका जो ओरिजिन है ये आपका है, इट कैन बी ट्रेस बैक फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट, एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसका नाम था सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, और ये 1972 में आया था। उससे भी पहले कुछ बहुत सारे स्मॉल एफर्ट्स और स्मॉल आपके ऑर्गेनाइजिंग इस तरीके के थे, जैसे एग्जाम्पल में टीएलए था पहले, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन था, ठीक है, जो कि आपके अहमदाबाद की विमेन ने इसको स्टार्ट किया था टीएलए। लेकिन इसका जो ओरिजिन है, इट वाज स्टार्टेड व्हेन द सेवा, SEWA वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972। तो सेवा का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन, 1972 में ये आया, ठीक है? उससे भी पहले कुछ कुछ ऐसे एसोसिएशंस थे, जैसे कि मैंने बताया टीएलए, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद, ये था, जहां पर विमेन विंग्स ने स्पेशली ट्रेनिंग का काम देना शुरू किया था। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप से पहले भी कुछ एसोसिएशंस थे, जैसे टीएलए, जिसका नाम मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, और ये जो विमेन विंग्स था, और इन्होंने जो एसोसिएशन बनाया था, दैट वाज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग द training to whom, training to the women belonging to the family of mill workers। तो जो टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, उन्हीं के फैमिली के लोगों को ट्रेनिंग देने का काम भी यहाँ पर, स्किल जैसे सेविंग, सिलाई, बुनाई, ये सब चीजें सिखाई जाती थी टीएलए के द्वारा, ठीक है?
ईला भट्ट जो जिन्होंने फॉर्म किया था इस सेवा, जो आपका एसोसिएशन है सेवा, इसको फॉर्म किया था ईला भट्ट ने, और एक ऑर्गेनाइज पुअर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन वर्कर्स सच एज, यहाँ पर वो क्या थी सुनिए। तो ईला भट्ट ने फॉर्म किया सेवा, एक ऑर्गेनाइज पुअर और एक सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन वर्कर थी वो। मतलब किसके लिए शुरू किया था उन्होंने, तो बेसिकली उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉय मतलब लोगों को जॉब देने के लिए काम शुरू किया था। ईला भट्ट जो थी एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, और उन्होंने सेवा को फॉर्म किया, और उनका मेन काम क्या था, दैट शी इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्सेप्ट टू द विमेन वर्कर, जैसे वो वीवर, पॉटर, हॉकर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उन सब के विमेन के लिए इन्होंने ये काम शुरू किया था, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहांसिंग देयर इनकम। तो ऐसे महिलाएं जो बहुत छोटा मोटा काम करती हैं, कोई सब्जियां मतलब वेजिटेबल सेल करती हैं, या फिर कोई वीवर है, कोई नेट कर रही हैं, ये जो भी थी, इनके लिए ये जो एसोसिएशन था इसको फॉर्म किया था ईला भट्ट ने। और ये इसलिए किया था ताकि इनहांस कर सके, किस चीज को, इनकम को इनहांस कर सके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं का। ठीक है, तो ये इसका एक रीजन था। नबार्ड जो है, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, नबार्ड कब आया है, नबार्ड कब आया है, NABARD 1990, 1990, ये क्या सारे बच्चे के, ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट कि जो नबार्ड है वो 1992 में स्टैब्लिश किया गया, 1992 में इसको फॉर्म किया गया, फॉर्म द SHG बैंक, और नबार्ड को, SHG को मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को बाद में नबार्ड के साथ लिंक कर दिया गया। ठीक है, और अभी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस है। माइक्रो फाइनेंस यानी जो छोटा मोटा लोन देने वाली जो आपकी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी एक माइक्रो फाइनेंस में नंबर 1 में है रूरल एरियाज में। ठीक है, इन 1993 ऑनवर्ड, 1993 के बाद नबार्ड जो है along with the RBI allowed SHG to open the saving bank accounts in the banks as well। तो आप समझ रहे हो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को शुरू किया गया था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जॉब्स के लिए, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वुमेन की, और इनकम को इनहांस करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी की तरह ये एक तरीके से स्प्रेड हो गया, और अभी आप देख सकते हैं कि ये एक ऑथराइज्ड टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल एसोसिएशन बन गया है, और जिसको नबार्ड के साथ लिंक कर दिया गया। 1993 के बाद RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और नबार्ड ने मिलकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप को अलाउ कर दिया कि अब आप बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनका काम एक और भी है, मतलब वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई अकाउंट नहीं है, वो बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो लोग होंगे, मेंबर्स होंगे, लोगों को हेल्प कर सकते हैं बैंक अकाउंट ओपन भी करवाने में। ठीक है, जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, जो 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इंटेंशन ऑफ प्रमोटिंग द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, तो इसको भी आपका इन्वॉल्व कर लिया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया। और ये जो है, और फिर बाद में आपके जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट, मतलब गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया NRLM में। NRLM का मतलब क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में अब आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इसके साथ लिंक कर दिया गया। आगे बात समझ में, एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, इवोल्यूशन स्टेजेस की बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप की इंडिया में, तो हाउ इट वाज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहला जो था फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, सबसे पहले इसमें कौन कौन से स्टेज आए, ग्रुप को फॉर्म किया गया, यानी 5, 10, 15 लोग मिलकर के उन्होंने ग्रुप को बनाया। सेकेंड, फंडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, बिकॉज ये एक तरीके से एक छोटा फाइनेंशियल एसोसिएशन था, यानी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए था, तो इसके लिए तो आपको कैपिटल चाहिए, पैसे नहीं होंगे तो कैसे क्रेडिट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका स्टेज था दैट वाज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप को फॉर्म करना। वंस द ग्रुप इज फॉर्म्ड, देन उसके बाद व्हाट हैपेंड, देन आपका आया फंडिंग और फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड स्किल टू बूस्ट इनकम जनरेशन फॉर द ग्रुप। अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था ये क्या क्या काम करता था, मैं आपको बता देती हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी आपकी लेडीज थी, वुमेन है, वो ज्यादातर नॉन या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं हैं। उन्होंने और भी अपने स्किल को डेवलप किया, और अभी भी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं।
जो पैसे मिलते हैं उनको जोड़ते हैं और उसी पैसे को वो क्रेडिट के रूप में दूसरे लोगों को उधार पर यानी क्रेडिट पर लोन देते हैं, राइट। तो पहला तो था कि ग्रुप को फॉर्म करना, सेकेंड था फंड फॉर द कैपिटल, and the third one is development of required skills to boost income generation for the group, to boost income generation for the group, यानी फॉर्मेशन, फंडिंग और डेवलपमेंट करना किस चीज का, रिक्वायर्ड स्किल का, ताकि आपका इनकम जनरेट हो पाए ग्रुप का। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ सेल्फ हेल्प प्रमोटिंग एजेंसीज। अब सेल्फ हेल्प जो है उनको कौन कौन सी एजेंसीज प्रमोट करती हैं, तो सबसे पहले नॉन गवर्नमेंट एनजीओ बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, एनजीए और एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, पहला। दूसरा है आपका गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप बिकॉज इट इज गिविंग द टू थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं, पैसा भी, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेटर इनिशिएटिव है। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप कॉन्सेप्ट। समझ में आया, समझ में आ रहा है सबको। थर्ड वन इज द पॉवर्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम, सो पॉवर्टी एलिविएशन जितने भी प्रोग्राम्स है, दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप because poverty will be minimized once you will get the job. So obviously the self-help group is basically increasing the employment opportunity in the rural areas, basically in unorganized sector. So somehow the poverty alleviation programs or the poverty management programs are also promoting self-help group. ठीक है, state and commercial banks, they are also promoting self-help group. Microfinance institutions, they are also promoting. ठीक है, फिर आपके कुछ एसएचजी लीडर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप लीडर्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जिन्होंने ये पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्म करने में या फिर किसी एक एरिया में जहां पर एसएचजी फॉर्म हुआ है वहां का कोई पर्सन लीडर है तो वो भी प्रमोट करता है। और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप जिन्होंने शुरू किया है खासकर रूरल एरियाज में, सो दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप। समझ में आया, क्लियर हो गया, व्हाट आर द एजेंसीज विच बेसिकली प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Next one is functions of self-help group. What are the various functions of self-help group? What are the functions of self-help groups? So the first function is they try to build the functional capacity of poor and marginalized section of. They try to build the functional capacity of poor and marginalized sections of society in the domain of employment and income generating activities They try to build the functional capacity of poor and marginalized sections of society in the domain of employment and income generating activities. So let me tell you what is the meaning of this line. यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका मेन काम ये है कि दे आर बेसिकली उन लोगों को ये ज्यादातर मेंबर्स बनाते हैं या ये उन लोगों को बेसिकली ट्रेनिंग या स्किल देते हैं जो कि काफी पुअर हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं सोसाइटी में, जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनको जैसे वीविंग, नीटिंग, ये सब चीजें सिखाना, उससे पैसा जनरेट होने पे क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना। तो कहीं ना कहीं इट इज बेसिकली इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रूरल पीपल और बेसिकली of marginalized or poor people. समझ में आया? This line is clear? This line is clear? Okay. Next one is they offer collateral free loans to sections of people. They offer collateral free loans to sections of people that generally find it hard to get loans from banks. So they offer collateral free loans to sections of people that generally find it
hard to get loans from banks. So let me tell you what is the meaning of this line. That collateral free का मतलब होता है where you don't need to give any kind of security. For example, if any one of you are taking the educational loan or anyone can take the personal loan, in that situation we have to basically pay the money. हमें provide the security कि in the case if you're not able to pay the loan amount, that security is going to be used by the bank. जैसे मान लीजिए किसी को हाउस लोन लेना है, अब हाउस लोन ले लिया आपने, अब उसके लिए अगर आप सिक्योरिटी दोगे तो कल को अगर हाउस लोन के पैसे बैंक के पास नहीं आएंगे तो सिक्योरिटी को यूज किया जाएगा रीपेमेंट के लिए या बैड डेब्ट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी लगभग हर एक बैंक को चाहिए ही चाहिए, है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये स्पेशल फीचर यही है कि वो कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करता है, खासकर उन लोगों को देता है जिनको बैंक से लोन मिलना जिनके लिए काफी मुश्किल है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास कोई सिक्योरिटी अमाउंट या कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो प्लेज कर सके या फिर उनको एज अ कोलेट्रल दे पाए। सो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द कोलेट्रल फ्री लोन फैसिलिटी। समझ में आया। अब जिनको कहीं भी पैसा नहीं मिल रहा है, पुअर पीपल है, उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर बेसिकली द एसोसिएशन हु इज बेसिकली विलिंग टू हेल्प दोस पीपल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए, और भी बताती हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप यही नहीं करता, और भी क्या क्या चीजें करता है, सुनिए नेक्स्ट। दे ऑल्सो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, दे ऑल्सो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स via mutual discussions, via VIA, via mutual discussions and collective leadership, and collective leadership. So they also resolve conflicts via mutual discussions and collective leaderships. What is the meaning of this line? See, in a rural areas, if there is any conflict among the families or among any relation like son, father, spouse, husband and wife, so basically they are also helping those people by resolving the conflict by the mutual discussion. मतलब एक साथ मिलकर जुलकर बात करवाते हैं, बात करते हैं, conflict को दूर करते हैं लोगों के बीच में। So they are also doing the social work, like समझ में आई बात। कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको भी रिजॉल्व करने का काम करते हैं, ठीक है। बट दैट इज नॉट देयर राइट, ये इनका राइट नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने इनको ऐसा राइट दिया है कि आप झगड़ा सॉल्व कराओ, बट दे आर बेसिकली डूइंग दिस फॉर द सोशल एज अ सोशल इनिशिएटिव। यस मोनिका। यस मैम। मैम ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो किन लोगों को लोन्स देते हैं? खासकर उन लोगों को मेंबर्स को? नहीं नहीं, ये दोनों को देते हैं, दोनों को देते हैं। यही आपका क्वेश्चन है कि किनको लोन देते हैं। यस मैम। तो दे आर बेसिकली गिविंग लोन टू मेंबर्स, जो उनके अपने ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको भी अगर जरूरत है तो उनको भी देते हैं लोन, और बाहर में भी उन लोगों को देते हैं जिनको लोन बैंक नहीं दे पा रही है। बैंक किसी भी रीजन से अगर आपको लोन नहीं दे रही है तो दे आर प्रोवाइडिंग द लोन फॉर टू दूस पीपल एज वेल। इट मींस दे आर प्रोवाइडिंग लोन टू द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल। समझ में आया मोनिका? यस मैम। मैम तो यहाँ पर जिन लोगों को ये लोन्स देती है, जो इनके मेंबर्स नहीं है, जो आउटसाइडर्स हैं, उनको लोन्स दे रही हैं, तो किस बेसिस पे लोन देती है? कुछ इनका देखो, इनका हाँ, इनका एक्चुअल में देखो ये जो है ना कि इनफॉर्मल टाइप ऑफ ग्रुप है। जैसे कैसे आप फ्रेंड्स को पैसे देते हो एक ट्रस्ट वर्दी रीजन से, ट्रस्ट की वजह से देते हो ना पैसे फ्रेंड्स को, फैमिलीज में किसी को, तो ये इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। लाइक द ट्रस्ट इज द रीजन दैट बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर गिविंग द मनी। एंड ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि बिहार के किसी छोटे से गांव में अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है तो ये बिहार में कहीं भी किसी को भी पैसे दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर बेसिकली गिविंग द मनी टू द पीपल हु आर बेसिकली लिविंग और रिसाइडिंग इन दैट विलेज, ठीक है, उन्हीं लोगों को देते हैं। हाँ, लोकल पीपल्स को देते हैं। ये इतना दूर भी नहीं दे देंगे लोन जहां से वापस आएगा नहीं, तो दे कैन नॉट एबल टू टेक द एक्शन, नो। So they are basically giving to those people whom they know or who are basically residing in that particular village area or in the local area. समझ में आया? But it is not necessary that those people need to be the member of self-help group. Clear? यस मैम। मैम यहाँ पे जो लोग लोन चाहिए होता है, जो भी आउटसाइडर्स पीपल हैं, उनको कुछ फॉर्मेलिटीज का नीड होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन ज्यादातर उन्हीं लोगों को देने की कोशिश करती है जिन लोगों को बैंक लोन नहीं दे रही है। तो आउटसाइडर को, आउटसाइडर क्यों लेगा आपसे लोन? सेल्फ हेल्प ग्रुप वो अपने विलेज के सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले लेगा। आई बात समझ में?
मेरा मतलब यहाँ पे जो उनके मेंबर्स नहीं है, जो आउटसाइडर टू द मेंबर है, उनसे रिलेटेड। अच्छा, उनसे रिलेटेड है, तो तो उस किस सेंस में बेसिस पे क्या ये है? लोग लोन देंगे? नहीं, उस कोई बेसिस नहीं है इसका, बस रिक्वायरमेंट बताओ और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर अपना ये कुछ पेपर वेपर लिखवाते होंगे, साइन कराते हैं और फिर आपको दे देते हैं लोग। लेकिन कोई कोलेट्रल नहीं लेते हैं, मतलब आपसे कोई जैसे आपको बैंक में तो देना पड़ेगा प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह, ऐसा ये कुछ नहीं लेते। कई बार तो आपको प्लेज के थ्रू लोन मिलता है, जैसे कार लोन लिए, कार को ही प्लेज कर दिया यस और उस मैम। बेसिस पर लोन मिल रहा है, ठीक है। अगर कार का पैसा नहीं दिया तो कार ही ले जाएंगे बैंक वाले। तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई बेसिस नहीं है, सिर्फ आपका पेपर एक लिखा पढ़ी वाला जो डॉक्यूमेंटेशन होता है नॉर्मल, ऐसा नहीं कि वर्बली बोलने पे दे देते हैं, बट एक लिखा पढ़ी एक डॉक्यूमेंट होता है, साइन करते हैं, फॉर्म भरते हैं और उस बेसिस पर लोन पास कर देते हैं। रिटर्न फॉर्म समझ में में? लेके। हाँ, रिटर्न फॉर्म में, लेकिन कोलेट्रल नहीं लेते हैं। समझ में आ गया? हाँ यस मैम। और मैम ये लोग कितने तक का लोन सेशन करते हैं? इनका बहुत माइक्रो फाइनेंस है, दे आर नॉट गिविंग लोन मोर देन 5 लाख, मतलब वो हार्डली आपका 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, पहले तो 1 लाख था, शायद अब बढ़ गया, शायद 4-5 लाख हो गया इसका। बहुत कम अमाउंट देते हैं, ठीक है, तो इसलिए तो इसका नाम है माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि जो बहुत कम कम अमाउंट का लोन देते हैं अमाउंट। समझ में आया? ओके मैम, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? किसी और का भी कोई क्वेश्चन है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? ओके, so let's start with the next point. So they are important source of microfinance services to the poor. So this is the next point or function of the self-help group, that they are basically one of the important source for the microfinance service to the poor. Next point is they act as a go-through for the formal banking services to reach poor, especially in rural areas. तो इनका लिंक जो है ना, मैंने बताया ना, ये इन्होंने क्या किया, रूरल एरियाज के बैंक के साथ इनका लिंक हो गया है, ठीक है। तो कई बार ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले क्या करते हैं कि वो वहां से डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेते हैं उन लोगों का जिनको लोन बैंक नहीं दे रही है, तो ये खुद से इनिशिएट करते हैं अपनी तरफ से लोन लेने का, कि लोन आप ले जा सकते हो हमारे यहाँ से। आ रही बात समझ में? सो कई बार जब लोग इन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ये खुद लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये लाइन है इसका मतलब। समझ में आई बात? और इसका इंफॉर्मेशन इनको कहां से मिलता है? दे आर गेटिंग इट फ्रॉम द रूरल बैंक्स, because the banks who are not sanctioned the loan to those people, they are giving the information about those people to the self help group, ठीक है, and then self help group approaches those people to take the loan from them. समझ में आ गया? समझ में आया everyone? This point is clear, yes or no? Yes, ma'am. Yes or no? Okay, लिखिए। They act as a go-through for formal banking services. They act as go-through for formal banking services. They act as a go-through for formal banking services to reach the poor, especially in rural areas. To reach the poor, especially in rural areas. Especially in rural areas. ठीक है? सो ये जो है, ये क्या करते हैं, ये आपके फॉर्मल बैंकिंग जो सर्विसेज हैं उनको भी, बैंक जो पर्सन को लोन नहीं मिल रहा है फॉर्मल सोर्स से, सो दे आर गिविंग द लोन टू दूस पीपल। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज दे ऑल्सो इनकरेज। इनकरेज करने का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना, है ना। सो दे ऑल्सो इनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग अमोंग द पुअर, यानी ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं लेकिन उनको सेविंग का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली नहीं पता, उनको ये प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप सेविंग कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया एवरीवन? ओके, सो व्हाट इज द रीजन और नीड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की नीड है क्या और क्यों है? तो सबसे पहला रीजन है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों होना चाहिए, दैट इज रूरल पॉवर्टी, ठीक है, और lack of access or limited access to the credit and financial services. Very limited banks and very limited credit facilities are available. So that is one of the basic reason that self-help group is required in the rural areas, and the rural poverty it is very high, ठीक है। तो गरीब लोगों को तो बैंक देती नहीं है लोन, सो नॉट इन दैट सेंस, गरीब लोगों को लोन देती है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के बिना कई बार मुश्किल होता है, इसीलिए। नेक्स्ट वन, एक रंगा राजन। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग हैं जो रंगा राजन के बारे में सुना है? रंगा राजन कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उनके द्वारा ये कमेटी बनी थी।
तो रंगाराजन कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था, उन्होंने हाईलाइट किया था मेजर रीजंस ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। तो इनएबिलिटी टू गिव द कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब इस कमेटी ने ये चीज बताया था कि यहाँ पर क्रेडिट कोलेटरल सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इनसफिशिएंट रीच है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन तक पहुंचने में लोग समर्थ ही नहीं है, बहुत ज्यादा वीक कम्युनिटी नेटवर्क है खास करके बैंकिंग को लेकर के। तो ये सब रीजन की वजह से बहुत प्रॉब्लम है क्रेडिट फैसिलिटी का, सो दैट्स व्हाई सेल्फ हेल्प ग्रुप इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके अलावा एक और भी चीज है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, दे आर बेसिकली गिविंग द क्रेडिट टू द पुअर पीपल, तो पुअर पीपल के लिए ये ऑप्शन बेहतर है। और यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बेहतर है, क्योंकि वुमेन आर बेसिकली द मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, so definitely it is basically increasing the women empowerment। एंड एक और भी चीज है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं लिटरेसी बढ़ रहा है, आपके हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ रहा है, बेटर फैमिली प्लानिंग, ये सब चीजों के ऊपर भी सलाह और एडवाइस ये लोग देते हैं। सो दीज थिंग्स आर आल्सो इम्प्रूव्ड इन द रूरल एरिया, सो दैट्स व्हाई सेल्फ हेल्प ग्रुप इज रिक्वायर्ड इन द रूरल एरियाज। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का? व्हाट कैन बी द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? पहला लिखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि जो लोगों को लोन नहीं मिल रहा था, जो आपके बाहर से एक्सक्लूडेड थे एरियाज फाइनेंस के मामले में, जो आपके लोग, उनको इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन इट मींस दैट दे आर प्रोवाइडिंग द incentives banks, मतलब SHG incentives bank to lend poor and marginalized section of the society. Next one is social integrity. social integrity में बताती हूँ, जितनी भी सोशल लेवल प्रॉब्लम है, जैसे डाउरी की प्रॉब्लम हो गई, आपके अल्कोहलिज्म हो गया, अर्ली मैरिज की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, इन सबको इराडिक्ट करने का काम भी आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप करता है। मैंने बताया था ना कि कॉन्फ्लिक्ट भी सॉल्व करता है, but they are also giving the advice and also they are basically guiding the people for what is social level and how we can prevent it, right? So basically they are maintaining the social integrity as well. ठीक है, next one is gender equality. So basically by empowering the women, they help the steer the nation towards the true gender equality. So the women are basically the participant or members of this. So basically they are giving the message of gender equality to the society. ठीक है, next one is a voice to marginalized. So obviously that marginalized और वैसे section या फिर वैसे classes और communities जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं, या फिर जिनको लोन, पैसे या फिर किसी भी तरीके की जॉब में या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये बेसिकली उनकी ये वॉइस है, आवाज है, सो दे आर बेसिकली हेल्पिंग दूस पीपल। प्रेशर ग्रुप, अब एक और बात बता देती हूँ कि दे आर एक्टिंग एज अ प्रेशर ग्रुप बाय बिकॉज दे आर एन एसोसिएशन, और एसोसिएशन है इसलिए इनके पास राइट है कि कई बार अपनी बात को मनवाने के लिए दे आर मेकिंग द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर द वेरियस इश्यूज। तो बहुत सारे इश्यूज को लेकर के ये गवर्नमेंट पे प्रेशर भी बनाती है, तो एक प्रेशर ग्रुप है। इनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उनके बेसिकली कह सकते हैं उनके स्कीम्स को इनहांस करती है, बढ़ाती है, इम्प्लीमेंट करती है प्रॉपरली स्कीम्स को, और ये करप्शन को सोशल ऑडिट में के थ्रू, सोशल ऑडिट यानी सोशल ऑडिट समझ रहे हो कि ये कभी भी किसी ऑफिस में चली जाती है और वहां पर अगर स्कीम्स को लेकर पैसे आए हैं, फंड आए हैं, करप्शन हो रहा है, तो उसके लिए भी आवाज उठाते हैं। So basically they are reducing या eradicating the corruption from the rural areas by doing the social audits. कौन ये करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। समझ में आया? And they are improving in implementing of the government scheme in the rural areas. समझ में आ रहा है सबको? This point is clear? Yes, ma'am. Okay. Next one is impact on healthcare and housing. 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 अब इसका क्या मतलब हुआ सुनिए कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से,
इस वजह से बेटर फैमिली प्लानिंग हो रही है। चाइल्ड मोर्टालिटी जो है, चाइल्ड मोर्टालिटी यानी वैसे बच्चे जो 6 महीने से कम उम्र के होते हैं, ठीक है, 1 साल से कम, मान लो 1 साल से कम होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको कहते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी, ठीक है। तो चाइल्ड मोर्टालिटी भी रिड्यूस हो रहा है। maternal health, that is also improving. So what I said na, that they are working for the social betterment as well, ठीक है। उसके अलावा they are also help the people who are fighting with any disease like the tuberculosis, dengue and all these things, or how the women or how the people can maintain the nutrition or the balanced diet, they are also giving advice on that, ठीक है। So they are in short they are impacting the healthcare, ठीक है, as well as the housing, ठीक है। समझ में आ गया एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर। मैटरनल हेल्थ, उसके अलावा बेटरमेंट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इज रिड्यूसिंग, दे आर आल्सो गिविंग एडवाइस ऑन द वेरियस थिंग्स, ठीक है, फैमिली प्लानिंग एंड ऑल, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, डिजीज वगैरह से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो दे आर गिविंग द इंफॉर्मेशन, एक अवेयरनेस भी ये जनरेट कर रहे हैं रूरल पीपल के बीच में, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? व्हाट आर द एडवांटेजेस? Yes, ma'am. Next point is banking literacy. Banking literacy. Banking literacy. अच्छा, what is basically banking literacy का मतलब क्या है कि जैसे आपको कभी बैंक में अकाउंट ओपन कराना है, तो जैसे मान लो मुझे बैंक अगर अकाउंट ओपन कराना है तो फॉर मी इट इज वेरी इजी कि मैं जाऊंगी बैंक में, एक फॉर्म दूंगी, फॉर्म भरूंगी, केवाईसी फॉर्म भरूंगी, एक नॉर्मल फॉर्म भरूंगी और उसके बाद फोटोज और अपने आईडी या कुछ भी अपना एड्रेस प्रूफ वगैरह दिया और मेरा अकाउंट ओपन हो गया। So for me, this is very easy because I am educated. But in the case of the uneducated people or illiterate people who don't know that how the bank is functioning and what are the basically procedure or steps need to be taken when you are opening, you want to open your account in the bank. So for that, they are giving the information और किस तरीके से आप बैंक में अकाउंट वगैरह ओपन करा सकते हो, ये भी इंफॉर्मेशन देने का काम, या बैंक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी इंफॉर्मेशन है उसको देने का काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप करवाती है। इवन कई बार बैंक में अकाउंट ओपन भी करवाने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप करवाती है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं आपके रूरल सेगमेंट में बैंक से रिलेटेड अवेयरनेस को भी इंक्रीज कर रही है, बिकॉज अब तो ये नाबार्ड और आरबीआई से भी लिंक्ड है। So they are basically promoting the banking system in the rural segment as well. Clear? These points are clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, just wait for a minute. Anyone has any doubt in any of the point? किसी में भी कोई doubt किसी को भी? I am asking question. किसी को कोई No, doubt ma'am. है? Okay. Okay, see you all in the next class. Thank you, ma'am. Okay.